So let's begin the session. Practical session है आज, तो सोने का कोई सवाल नहीं है किसी का, and it's actually very interesting. Dipti, I will introduce you first. So today is the art of breathing, which is called pranayam. And हम सब ने सुना है, देखा भी है टीवी पर और कई बार ट्राई भी किया है प्राणायाम करने का. सही गलत आज पता चलेगा कि सब किस तरह से करते हैं. And Dipti, you were very kind to agree to take up this session. Dipti is a MBA by qualification and auditor by profession. ये बड़ा interesting combination है Dipti. And she has 12 years of corporate experience, including the Big Four. Very good. She's a pranic healer also. So काफी multi-talented हो यार. And we are so happy to have you as a cafe member. Very nice, Dipti. Dipti is a globally certified yoga trainer and faculty of the Art of Living's Happiness program. Her motto is that she's learned that making a living and making a life, they are two separate things. So I think, Dipti, you believe in making a life more than making a living. Of course. Yeah. Of course. And and she's a strong feminist and a versatile, enthusiastic learner. She's associated with Lean In circles also and various other women causes since 2016. And Dipti is a cafe member and we are proud of it. Thank you, Dipti, for taking up this session. This is a World Yoga Day special session for each of us. And I hope आज हम लोग जो भी सीखें संडे को तो जरूर प्रैक्टिस करें. And also in our day-to-day life, whenever possible, we must practice the art of pranayam. So Dipti, over to you. Let's begin the session. Sure. So hello everybody. Good afternoon to everyone. And I'll start by sharing my screen. Just give me a few moments. Yeah. So Dipti, आपको सुनने में सिर्फ मेरा ही आवाज सुनाई देगा, but there are other participants here. Yeah, I am watching them as much as I can in the small view. Yeah. Screen sharing, so you lose that view of all the participants actually. Yes. Yeah, I have put it on, but it's in a very small window, so I can see 4 people max in that. Right. Is my screen visible now? Yes, absolutely. Okay. So Kavita, I was just testing it once. Yeah. Yeah, I think it's clear. I've put it on slideshow. Yes. Okay. अच्छे से दिख रहा है. Okay. So let's start. And definitely, like you said, we should practice it in our daily lives. We will see how beneficial it is, because even I have observed in my practice that it has really come to rescue in many situations. Sometimes personal, sometimes professional, in all aspects, basically. Yeah. So, and also there will be one request while we will be in the mode of this presentation. You all can see a small picture of mine. So if you click that, the screen will switch on its own. Sometimes when I'm showing the practical, will that be feasible if all the members just click on the small screen, because it will switch the screen? मेरा केस में तो नहीं होगा दीप्ति वो. ओके. बाकी लोगों के लिए ये हो सकता है क्या, एक बार आप ट्राई करें कि आपके विंडो में एक पावर पॉइंट दिख रहा है और नीचे एक छोटे से बॉक्स में मेरा वीडियो दिख रहा है,
उसको क्लिक करेंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा. जब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ भी दिखाऊं, बस उस टाइम आपको स्विच करना है ताकि अपने टाइम सेव कर लें. They are saying yes. They are saying yes. Okay, then it's done. So now I'll not have to stop share and reshare every time. ठीक है. Okay. So let's begin and we go on to the presentation. Yeah. Yeah. So I would want to know from our members, what are the 4 sources of energy? What do we think are the 4 sources, the 4 main sources of energy from where we gain energy? And I'm opening my chat box also. So let's keep it pouring. Yes, we are getting answers. Sun, breath, food, Sleep, water, sleep, air, breath, exercising. I'm waiting for one more that is there on my list. Yes, meditation. So great. Nice interaction. So now we see how these 4 things that we called for the major sources of energy help us. Is the next screen visible? Yes, yes. Food, sleep. Okay, food, sleep, breath, and meditation. So I would like to say that definitely, as we all know, we are focusing on breath here, but food, sleep, and meditation, these are the 3 equally important things when we talk of energy. And when we have good energy, what does it do? It gives us a strong mind, it gives us a calm mind, it gives us also physically strong body to exhibit and complete all the activities that we are supposed to do. However, everything has to be done in moderation. Like कभी-कभी हम लोग जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं लगता है, हमें ज़्यादा थकान फील होती है. हाँ, तो उसी तरह ये चारों जो ऊर्जा के स्रोत हैं, फूड, स्लीप, ब्रेथ एंड मेडिटेशन, इसमें हमेशा एक बीच का रास्ता, मॉडरेशन की जरूरत है. फिर जैसे स्लीप, जैसे संडेज में भी हम लोग कभी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाते हैं तो हमें और ज्यादा लेजी फील होता है. ऐसा नहीं होता है कि हमें ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है वो एक्स्ट्रा स्लीप से. एंड विथ मेडिटेशन ऑल्सो हम मेडिटेट करते हैं या जो नहीं भी करते हैं वो थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं या करना शुरू करें तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है, जब स्पेशली एंजाइटी या ऐसी कुछ दिमाग में ऐसे टेंशन, वरी कुछ भी आ जाते हैं तब. नाउ कमिंग टू ब्रेथ, एक पहले क्विज लेंगे छोटा सा ब्रेथ के लिए और फिर ब्रेथ के बारे में आगे बात करेंगे. तो कविता आप क्विज एक बार डिस्प्ले कर दीजिए. आया क्या? हाँ, it is visible. Shikha has raised the hand, Kavita. I think that was by mistake. She is lowered. Okay, because Nitu has also raised her hand, it is showing. So let me just... नीतू मैंने अनम्यूट करने का, हाँ यार, she's unmuted. Neetu is unmuted? Yeah, she is unmuted. Yeah. Yeah, we breathe when you want we to say? No, do we need to answer in the chat box or do we need to answer orally? No. You will have something on the screen appearing. There is a poll and you just click on the right option A, B or C. इस 3 ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगे आप उस पे एक बार क्लिक कर दीजिए, वो पोल के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे. Okay, thank you. Yeah. So I think, Kavita, are the results being displayed to members already of the poll? No. Can you see the results? I can see actually, yeah. Even I can see. So should we end? Because... yeah, I think we should end because we've kept it for more than 1.5 minutes.
So I've shared the results. So 33% people say that when we breathe out, our tummy goes out, and 67% said that when we breathe out, our tummy comes in. या सो एक बार हिंदी में बोलते हैं ये चीज के इसको कि जब हम अंदर श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा पेट बाहर जाता है या अंदर जाता है, ये क्वेश्चन था। तो जो पोल का रिजल्ट्स आया है उसमें 33% लोगों ने कहा सांस बाहर छोड़ने के टाइम पेट बाहर जाता है, और सांस बाहर छोड़ने के टाइम 67% लोगों ने कहा कि पेट अंदर आता है। तो ये कंफ्यूजन कुछ हद तक हमेशा रहता है, जब भी मैंने पहले भी देखा है, यही एक रीजन था इस पोल को लेने के लिए। और यहाँ मेरा फोकस ये 33% लोगों के ऊपर ज्यादा रहेगा जिन्होंने कहा कि एक्सहेल बाहर सांस छोड़ने के टाइम पेट बाहर जाता है। अगर हम एक सिंपल बलून का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो हमको ज्यादा आसानी होगा समझने में कि जब हम एक बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, ना कि पिचकता है। तो ये क्लियर है? यस। हाँ, तो जब बलून में से हवा निकल जाती है, जिसको हम सांस बाहर छोड़ने के बराबर मानते हैं, तब बलून पिचक जाता है। इसलिए हमारा पेट भी एकदम उस तरह ही फंक्शन करता है। जब बलून में हवा अंदर ले रहे हैं तो फूल जाता है, और बलून को पिचका रहे हैं, जब बलून पिचक रहे हैं तो हवा बाहर जा रहा है। इज इट क्लियर नाउ? स्पेशली जिन लोगों ने ये 33% पीपल ने जो ये आंसर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ये रेस्पिरेशन का एकदम बेसिक है, ये बिना समझे हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ गलतियां कर सकते हैं ड्यूरिंग प्राणायाम, और प्राणायाम उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। कुछ बोल रहे हो तो बोलो, म्यूट। ओके, ठीक है। तो ये रिमूव कर सकते हैं पोल्स। I removed it, no? Oh, it's showing on my screen. क्रॉस कर दो ऊपर। Disabled है screen क्या? हाँ, now it's done. Thank you. So now coming back to breath in our presentation. So like we understood now that how important correct breathing is. We will see that 90% of the toxins that we release in the body, from the body, is from the lungs. And normal person in day-to-day activity only uses 30% of the lung capacity. That means we have 70% of our capacity that we are not utilizing in daily activity. हम लोग अपना 70% लंग्स का जो कैपेसिटी है ब्रीदिंग का, वो डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर है वो पूरी तरह नहीं निकल पाते हैं। इसलिए और स्पेशली अभी ये जो कोरोना का सिचुएशन है, कोविड-19 टाइम्स, जब हम हमेशा अभी बहुत इम्यूनिटी की बातें, रेस्पिरेशन और बहुत सारी तरह से जिसमें भी लंग्स को क्लियर रखना है, उस प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए right now it becomes even more important that we practice pranayam, because it is helping us in one more way to keep our immunity strong. So we'll go to the next slide, because we have seen these things, these 4 sources of energy which we have taken, and we come to the types of breathing. So we will do a practical now. I will bend my screen to show the movement of the stomach so that it's a little clear. Although we can follow the instructions also while performing the pranayam. So now in this breathing, like we see abdominal and yogic, 2 types of breathings I have mentioned on the screen. So abdominal breathing is mainly where we use our stomach capacity, full capacity of the stomach for breathing. And the other yogic breathing we will learn after we are clear with abdominal breathing. I'm just tilting my screen, Kavita. Just let me know if that is clear. ठीक है।
दीप्ति थोड़ा सा और नीचे. हाँ. It's better? Yeah, perfect. Okay, okay. तो सब लोग थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाएं, अगर कोई चेयर पे है तो भी, और अगर बेड पे है, जहां भी आप बैठे हैं, या क्रॉस लेग या चेयर पे कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं. और एक चीज का ध्यान दें कि स्पाइन इरेक्ट है. So let us sit comfortably and just put our spine erect, the back as erect as possible. If you need a back rest, please take a back rest. I see people are adjusting themselves. Okay. Okay. So और अभी आप इनके आइकन को टैप कर लो, अगर छोटा दिख रहा है तो इनका वीडियो. आई थिंक वो हाँ, स्विच कर सकते हैं आप. या दीप्ति. Yeah. So now as we are sitting comfortably, let's keep a smile on the face, and we'll begin by chanting Om just one time. I'll keep instructing and guiding. So let's take a normal breath in, and let's gently breathe out. One more time, a deep breath in for Om, inhalation, and let's all chant it together. So while exhaling, we'll chant Om. Taking a deep breath in for Om. And relax. Now for abdominal breathing, let's keep our right hand on the stomach, on the abdomen area, so that we can understand the movement of the stomach in and out. Again, we will breathe deeply. We'll inhale. So let's inhale. Let's push our abdomen outside. Inhale to our capacity maximum. You can watch on the screen. And I'm exhaling gradually. One more time. Let's inhale deeply, pushing the abdomen out. And gently breathing out, squeezing the tummy inside. So whatever air is left should go out. दीप्ति, अपने को कॉन्शियस करना पड़ता है. Conscious. Yeah, this we need to do consciously कि हमको पेट बाहर निकालना है. और because इस पे we will put our attention on the abdomen. ताकि हम पूरे ध्यान से ये करेंगे तो पूरी तरह से 100% ये होगा. इसलिए we'll do. So एक बार आप लोग चैट में लिखिए कि ठीक है, कर पा रहे हैं, फिर हम इसको 2 राउंड और प्रैक्टिस करेंगे. कुछ पूछ रहे हैं लोग कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं आराम से. और जहां भी ऐसा कुछ है कि नहीं कर सकते हैं, कोई कंडीशंस है, तो आई विल लेट यू नो इन एडवांस. सो कविता, ज्यादातर लोगों का आंसर यस आ रहा है. तो ये चीज अभी हमने जो सीखी है, इसको एक बार प्रैक्टिस और करते हैं, 3 राउंड्स करते हैं, एंड आई विल कीप गाइडिंग. सो लंच के तुरंत बाद आप नहीं कर सकते हैं. लंच के तुरंत बाद आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टमक ऑलरेडी भारी है. So let us start by few more rounds. So let us all sit erect like we were sitting, and we will take a deep breath in. Start inhaling, pushing the stomach, the abdomen region to the outside as much as we can, and relaxing, exhaling. The tummy is going in as much as possible. We are squeezing the abdominal muscles, coming inside, expelling the air as much as we can, and again inhaling. Full capacity of the abdomen we are using.
and exhaling. While exhaling, we have to be sure to expel all the air. So we have to squeeze our stomach. एक लास्ट राउंड हम प्रैक्टिस करते हैं. श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे पेट को बाहर निकालेंगे, जितना ज्यादा निकाल सकें, और फिर श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा और हम पेट को सिकोड़ लेंगे, जिससे जो भी अंदर हवा रह गई है वो भी बाहर आ जाए. एंड रिलैक्स. So this could be followed on the screen? Yes. Yes. Okay. Screen कहाँ है दीप्ति? हाँ, स्क्रीन पे कहीं पर आपने लिखा हुआ तो नहीं है ना? नहीं, ये जो स्क्रीन पे तो जो पावर पॉइंट है उसमें सिर्फ एब्डोमिनल और योगिक ब्रीदिंग है. हाँ. सो एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बाद जो ये योगिक ब्रीदिंग है, इस पे आते हैं. योगिक ब्रीदिंग मतलब हम लोग जैसे एब्डोमेन अभी तक यूज किए थे, एब्डोमेन के साथ साथ हम अपना पूरा अपर बॉडी मतलब चेस्ट रीजन को भी इंक्लूड करेंगे अप टू शोल्डर्स. जितना ज्यादा हम अंदर इनहेल कर सकते हैं, पूरा फुल कैपेसिटी ऑफ द अपर बॉडी रीजन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द शोल्डर्स. आई एम शोइंग ऑन माय स्क्रीन, सो आप लोग स्विच कर सकते हैं. अभी आप मेरा ही वीडियो ओपन रखिए. स्टार्टिंग फ्रॉम शोल्डर्स अप टू एब्डोमेन, अप टू दी एब्डोमेन एरिया. ये पूरे एरिया को हम लोग फिल करेंगे एयर से. मैं एक बार आपको शो करती हूँ और फिर हम साथ में इसको प्रैक्टिस करते हैं. Kavita, I'm adjusting the screen once again. Just let me know if it's visible as much. I want to show the region. Yes. हाँ? ठीक है एकदम. Yeah. Okay. So I have kept one hand on the stomach so that the movement of my stomach is visible. अभी ये योगिक ब्रीदिंग जो है, इसमें हम पेट का और चेस्ट का, शोल्डर का, कंधे का, यहाँ इस पूरे रीजन में हवा भरने की कोशिश करेंगे और फुल कैपेसिटी तक इनहेल करेंगे. एक राउंड आप देखिए और फिर हम आंखें बंद करके भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके. तो जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हमने किया था, शुरुआत वैसे ही होगी. एक गहरी सांस अंदर, पेट को बाहर पुश कर रहे हैं. जब लगे पेट पूरे कैपेसिटी पे बाहर है, तब थोड़ा सांस और लेंगे और चेस्ट रीजन में सांस भरेंगे. मैंने लेफ्ट हैंड रखा है चेस्ट रीजन पे. एंड आई एम एक्सपैंडिंग द अपर बॉडी. सांस पूरी तरह से भरते हुए शोल्डर्स एकदम शोल्डर्स तक आ गया है. और अब हम एक्सहेल करेंगे, मतलब सांस बाहर छोड़ेंगे ऊपर से. लंग्स से एक्सहेल कर रहे हैं. स्टमक अभी भी वही है. लंग्स से एक्सहेल और अब स्टमक से एक्सहेल. And relax. So, shall we practice this? Was this clear? Yes. Okay. So, if it is clear, अब आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, because उसके benefits अच्छा है. हम अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें कैसा लग रहा है. और अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं है, आप एक बार वीडियो देख के करिए. नेक्स्ट राउंड में आंख बंद कर लीजिएगा. So, sitting comfortably, spine erect. A normal breath in and breathe out. For yogic breathing, we take a deep breath in. We push our stomach out and we fill the chest to the capacity. The shoulders get tightened a little and we start exhaling from the top, from the lungs. Then the exhaling, the remains from the stomach. Whatever air is there, by squeezing the tummy, I am expelling it out. Next round करते हैं. एक गहरा सांस अंदर, पेट को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं.
अब छाती में हवा भर लें और कंधों तक आ जाएं। सांस छोड़ना है, पहले छाती से और फिर पेट से। जो भी थोड़ा हवा अभी भी है उसको स्टमक को स्क्वीज करके स्टमक को सिकुड़ लें और वो हवा बाहर आ जाए। And for the third round, let's take a deep breath in. Fill the abdomen, fill the chest, till the shoulders. And start exhaling from the top, from lungs. And gradually the tummy goes in. We squeeze the abdominal muscles and relax. Let's all take a normal breath in and let go. You can open your eyes if you had closed it. And we come back to the PowerPoint presentation. You can switch your screens. Do as much as you can. There is no harm. So if you cannot hold the breath, we are not holding the breath. We are just trying to fill. Wherever you think your 100% capacity to fill has been done, you can start exhaling. अगर आपको लगता है कि आपने जितना आप कर सकते थे उतना भर चुके हैं हवा, तो आप हवा बाहर छोड़ना शुरू कर दीजिए. Is this clear? Yes, Dipti. Should we ask for some answers in chat or should we proceed, Kavita? I think we should proceed, Dipti. Okay. Okay. There are a couple of people writing yes, so I'm assuming it's clear. Yeah. Yeah. आप बहुत अच्छे से बता रहे हो, तो उसमें नॉट क्लियर होने का कोई सवाल ही नहीं है. कुछ लोग जो फर्स्ट बार करते हैं बस उसके लिए उनके लिए रहता है कि वो कहीं भी अगर अटक रहे हो तो आप चैट एक बार फॉलो करिए. आपको कुछ भी ऐसा लगे एक्सेप्शनल तो आप एक बार बताइए. हाँ. So I have shifted to the next screen. Is it visible? Yes. Okay. Here I would like to say something like अभी हमने जो प्रैक्टिस किया बहुत छोटा सा प्रैक्टिस था. 3 ब्रेथ्स हमने 2 तरह से लिए, लेकिन उसमें भी जो डीप ब्रेथ है या जिसको हम एब्डोमिनल ब्रेथ बोल रहे थे अभी, वो हमें बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस को रिलीज करने में, क्योंकि हमारे अंदर जितना भी टॉक्सिन्स है वो बाहर जा रहा है, डीपली बाहर जा रहा है, और फ्रेश एयर जो फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो भर रहा है. इस वजह से हमारे ब्रेन को एक मैसेज मिलता है ऑल इज वेल, और स्ट्रेस कम हो जाता है या स्ट्रेस चला जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड चेस्ट ब्रीदिंग जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, मैं एक बार स्क्रीन डाउन करके वापस दिखा रही हूँ. यहाँ एक डायफ्राम मसल है, ये डायफ्राम के ऊपर ही मतलब ये नेक और डायफ्राम इस एरिया के बीच में ही हम लोग नॉर्मल में ब्रीथ करते रहते हैं. जब हम ध्यान नहीं देते हैं, जब अवेयरनेस के साथ नहीं करते हैं, इतने से एरिया में ब्रीथ करते हैं जिसको हम बोलते हैं शैलो ब्रीथिंग. तो वो शैलो ब्रीदिंग से हमेशा एक थोड़ा वरी, एंजाइटी या क्लैरिटी नहीं रहता है, जिससे हम हमेशा स्ट्रेस फील करते हैं. तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग और योगिक ब्रीदिंग हमें ऑलरेडी अपने बेनिफिट्स जो है वो इसी में निकल के आ रहा है कि हम एक तरह से स्ट्रेस हटाने में बहुत हेल्प करता है. सो वी विल गो टू अ स्मॉल क्विज नाउ अगेन to understand how it was affecting you. Kavita, the second quiz, if you can put on the screen. Yeah. So it is visible on the screen. Let's click. And we'll keep the quiz only for 1 minute. I think that is enough. Meanwhile, if anyone has something to put on the chat, I can follow the chat box. तो सबको डीप एंड स्मूथ लग रहा है. मैक्सिमम 77, 78, 79%, 80. What is the percentage of people who have already voted by now?
71%. 70, yeah. Let's have it for a few more seconds and then we'll close it. 1 minute I think हो you गया. can close the 1 minute अभी हो गया. हाँ, आप close कर दो इसको. Let's display the results. मैंने हाँ. हाँ. So the results must be appearing in everybody's screen, and we see that deep and smooth breath is the answer from 81% of the people. ये results अभी सबके screen पे दिख रहे होंगे, जहाँ पे हमने question पूछा था कि ये छोटी सी practice अभी करने के बाद आपको अपने breath में क्या change लग रहा है, आपको कैसा feel हो रहा है, deep है, गहरा है आपका सांस, या अभी भी वो ऊपरी सांस है जो chest से हमने अभी explain किया जो हम लेते हैं. ज्यादातर लोग को डीप एंड स्मूथ फील हो रहा है. ओके, वेरी नाइस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस ब्रिंग्स अस. या श्योर. हट गया ना? हाँ, हट गया, मैंने वो क्रॉस कर दिया. सो दिस ब्रिंग्स अस टू प्राणायाम. And again in the chat box, I would like to know what are your experiences, what do you think pranayam is, and once again quickly if people can put in their what all they practice, because some people in the starting were mentioning they practice pranayam, yoga. So what do you think? लोगों ने लिखा था कि वो अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दो सबसे मैक्सिमम. तो ये दो प्राणायाम के टाइप्स हैं, बट प्राणायाम क्या है ये अगर कुछ मतलब कुछ भी अगर आइडिया है, कोई लिखना चाहे क्विकली 20 seconds we can see the results. ठीक है, ज्यादातर लोग नाम लिख रहे हैं. और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आरती ने कहा, which is very true. Mindful breathing, Ruchika says, which is perfect. Great. So yes, like many people mentioned already, pranayam. Let's see this one word pranayam. Let's break it into two parts to deeply understand it. Prana means vital life force energy, and ayama is the regulation or control of it. So pranayam is movement of vital life force energy, or we can say control of prana through our own breath. And breathing, as we all know, is an involuntary function. However, for few minutes with our own awareness, we can make it voluntary and control its speed and focus our attention on it to get the most out of it. अब एक बार हिंदी में हम लोग इसको समझ लेते हैं कि प्राणायाम क्या है. तो प्राण अलग से और आयाम. प्राण मतलब ऊर्जा और आयाम मतलब उसका कंट्रोल, उसको नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं. प्राणायाम का मतलब हुआ कि हमारी ऊर्जा को हम अपने श्वास के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. अब एक कुछ अंडरस्टैंडिंग डीमिस्टिफाइड प्राणायाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी कुछ मिथ्स हैं या हम कुछ चीजें नहीं जानते हैं लेकिन वो बहुत सिंपल है, तो उसको हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक पिक्चर सबको दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग हैं और वो काइट उड़ा रहे हैं. तो यहाँ जैसे ये एक पर्सन है, यहाँ उसके हाथ में एक डोर है और ऊपर एक पतंग है. तो ये पर्सन को डोर जिस तरह से वो हिलाता है, पतंग उस तरह से उसके कंट्रोल में रहते हुए जाती है. उस तरह से वो एक दूसरे के पतंग को कभी काट रहा है, कभी कुछ, लेकिन वो कंट्रोल उसके हाथ में नीचे है और पतंग बहुत मील ऊपर उसके उड़ रहा है. सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन जो है, ये बॉडी है हमारा, ये जो थ्रेड है, स्ट्रिंग ऊपर कनेक्ट हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ये हमारा श्वास है, ब्रेथ, एंड ये जो पतंग है, काइट, दिस इज द माइंड. सो ये नीचे आदमी जो है वो अपने श्वास द्वारा अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है. This is a small example through which I am trying to explain that the person through the breath, that is the string, can control the mind, which is the kite, and which keeps on flying in all directions with all different kinds of thoughts. Hence, it's very important to attend to the quality of our breath. क्योंकि ये जो breath है, ये एक तरह से हमें अपने इमोशंस और अपने माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. और कंट्रोल की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम उसको 100% इफेक्टिवली यूज कर सकें. जहां वो प्रोडक्टिव है उसको वहां लगा सकें और जहां नेगेटिविटी है वहां से विड्रॉ कर सकें.
एक और एग्जांपल मेरे माइंड में ये पीपीटी बनाने के टाइम पे आया था, और वो है रिमोट का। जैसे एसी का रिमोट हमारे हाथ में रहता है जनरली टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और जब हमें गर्म लगता है तो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठंडा लगता है तो वापस चेंज करते हैं। उसी तरह जब हमें माइंड में बहुत ज्यादा गर्मी मतलब हीट या एंगर ये फील होता है, तो भी हम लोग सिमिलरली ये प्राणायाम या ब्रेथ के थ्रू अपने माइंड का जो टेम्परेचर गर्म हो गया है उसको भी ठंडा कर सकते हैं। ये डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है, क्योंकि पतंग तो अब थोड़ा कॉमन रहा नहीं यूज में, बट एसी का रिमोट हम दिन में जरूर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए आई थिंक ये ज्यादा इजी टू रिमेम्बर होगा। आप जितने बार एसी का रिमोट दबाएंगे तो ये एक रिमाइंडर रहेगा कि आज का प्राणायाम हो गया या नहीं हुआ, ताकि वो टेम्परेचर माइंड का भी हम कंट्रोल कर सके। एंड ब्रेथ इज समथिंग विच चेंजेस with different emotions, and it changes different emotions. So there is a direct connection between them. One affects the other. And knowing this, we can use breath as a tool to change our emotions and patterns of the mind. Is this getting clear? Yes. Yeah. So here a small loop that is visible on the screen, breath and emotion. How it is a vicious cycle that breath can change the emotion, and if we are in a good mood then we can observe कि हम जब अच्छे मूड में रहते हैं तो हमारी सांस डीप ही चल रही है उस टाइम, जैसे कुछ अच्छा फ्रेग्रेंस स्मेल कर रहे हैं जो हमें बहुत पसंद है, तब हम शॉर्ट ब्रेथ नहीं लेते हैं, तब नॉर्मली हम लोग एकदम गहरा अंदर तक उस फ्रेग्रेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हमें लगता है कि कुछ एंजाइटी है या हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तब हम नॉर्मली वो ब्रेथ लेते हैं जो चेस्ट से लेके छोड़ देते हैं, शॉर्ट ब्रीथिंग। So it is like breath affects emotion as well as emotion shows what kind of breath is being taken. जैसे इसमें लिखा है मैंने, connection of body and mind is through the breath, and pranayam is effective for emotional regulation. If we understand the rhythm of the breath, we are able to say over the mind, we are able to have our say, and we win over the negative emotions and bring more productivity and smile into our heart. So I think this takes us to the impact of prana. Now what happens when we have high prana and what happens when we have low prana? तो high, अब हमने जैसे समझ लिया कि high prana से या low prana से क्या होगा, तो high prana हमें एक continuous breath देता है, एक smooth breath देता है, एक steady, जिससे हमें फील होता है कि हाँ चौपी टूटा हुआ ब्रेथ नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे अंदर हो रहा है, उससे माइंड काम है, पॉजिटिव है और एंथुजियास्टिक है। वेयरएज जब लो प्राणा है, जो हमने शॉर्ट ब्रेथ का बात किया था, जब शॉर्ट ब्रेथ रहता है तो ज्यादा हम लो प्राणा फील करते हैं कि फ्लो टूटा हुआ है, जर्की है, रुक रुक के है, और ज्यादा टेंशन, ज्यादा वरी, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या हर तरह का नेगेटिव क्वालिटी हमें तभी फील होता है। So how many people agree with this, that they have experienced something like this when in life, anytime? In the chat box, I am opening the chat box for some time. कि ये लो प्राणा, हाई प्राणा और शॉर्ट ब्रेथ और जो हमारा डीप ब्रेथ है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया है? I'll take it back to this slide to show breath emotion loop. ये पार्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? Shelja writes very well understood and observed. Aarti writes, yes, I have observed. Payal says yes. Purvi, Sonali says yes. Nisha says, in anger we breathe fast and small, which is very true. Rinku says, low prana I have experienced. So now, Rinku, you know how to convert the low prana to high prana without anybody around you knowing to it, and a couple of seconds and you are there, converted from low to high prana. Absolutely true. From choppy and broken breath to deep and smooth breath. Meena ji says, when we are under pressure, we breathe small, which is very true, because we come under pressure only because we breathe small. And once we take long, deep breaths, the pressure goes away because we are back to our self. I'm very grateful for the responses that are coming up on the chat. So let's go ahead. This gives an assurance that it's helping and yeah, understanding. Nice.
So again, we are back to practical because I know that our enthusiastic groups likes, practical more than any kind of theory. Even when I am in the audience, I also crave for practical things, so I can understand how it is. So again, a very simple one I have mentioned here, Brahmari. ये भ्रामरी जो है, ये नाम आया है भंवर से, जो बी रहता है उससे है भ्रामरी, और वो बी जैसा साउंड करता है, वो साउंड ही हमें इमिटेट करना है, बी का साउंड इस पर्टिकुलर प्राणायाम में. इसके बेनिफिट्स अभी स्क्रीन पे लिस्टेड हैं, बट अपने पहले एक्सपीरियंस करते हैं, फिर बेनिफिट्स देखेंगे. तो एक बार इसमें एक बार वापस अगर आपको जरूरत लगे तो आप मेरा स्क्रीन स्विच कर सकते हैं, बट ऑल्दो इसमें मतलब सिर्फ आपको आवाज ही फॉलो करना है, तो आप डायरेक्टली सुन के भी कर सकते हैं. एक बार आप खोल के प्रैक्टिस करेंगे और फिर राउंड्स, जो बाकी राउंड्स रहेंगे वो आप एकदम आराम से आंख बंद करके प्रैक्टिस करिएगा. तो एक बार वापस से थोड़ा एडजस्ट कर लें, आराम से बैठ जाएं, चेक कर लें आपका बैक रेस्ट, बैक स्ट्रेट है क्या, क्योंकि हम बैठते बैठते बहुत देर हो जाते हैं तो स्लाउच कर लेते हैं, थोड़ी आ जाते हैं. एक बार शोल्डर्स एडजस्ट कर लें. लेट्स ओपन आवर शोल्डर्स, जस्ट सी द बैक अलाइनमेंट. One good way to test this is your ear lobes should be in line with your shoulder. अगर वो आगे है तो हम झुके हुए हैं, तो अगर ear lobes are in line with the shoulder, that means our back, entire back is straight. Let's start by taking a normal breath in. Keep a smile on your face and exhale. Another deep breath in. When I say deep breath, we'll take it to the abdomen as much as we can. Okay. We take the deep breath to the abdomen, like we did the abdominal thing. So deep breath means let us take it to as much as we can to the abdomen. So now taking a deep breath in once again and exhaling. I'll show you once and then we will all do together. So in this, while I do the next time, I'll inhale, and while exhaling, I'll make a humming sound from the throat region, and it will echo in the entire head region. Also, when we do it, we will be practicing with, there is this ear lids that we have. Right now, don't plug the ear lids, you'll not be able to hear me. So with my index finger or the thumb, whichever is comfortable, what I'll do is while I'm exhaling, I'll just keep pushing back and forth this lid. It will help to enhance our experience better. So don't practice it right now, just see and watch once. I'm taking a deep breath in. While exhaling, I'll be humming and moving my hands for on the ear lids. Now let's all do together. Just follow the instructions. हिंदी में बोल देना. हाँ ठीक है, ये फर्स्ट राउंड हिंदी में करवाती हूँ. ठीक है, अब हम सब एक साथ करते हैं और गहरा सांस वापस लेते हैं, जैसे हम एब्डोमिनल जो पेट से सांस ले रहे थे वैसा ही सांस लेंगे. डीप ब्रेथ जब भी मैं बोलूं आप एकदम गहरा डीप सांस एब्डोमेन तक लीजिए और फिर छोड़ देंगे. तो ये जो हाथ उंगलियां हैं, फर्स्ट उंगली हम ये कान के ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा फ्लैप है वहां रखेंगे, और इसको जब हम सांस छोड़ेंगे और आवाज निकालेंगे उस सांस वो आवाज के टाइम इसको पुश करेंगे हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से, अंदर बाहर इस तरह से. तो एक राउंड हम फिर से साथ में करते हैं और अब हम कंटिन्यूअस कुछ राउंड्स करेंगे. अगर आपको लगे आप कॉन्फिडेंट है तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, वो आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा. तो एक बार चेक कर लें, स्पाइन स्ट्रेट है, चेहरे पे मुस्कान, और गहरी सांस लेते हुए पूरे पेट को भर लें. श्वास अंदर, पेट बाहर. अब हम आवाज निकालते हुए श्वास छोड़ेंगे.
फिर से एक गहरी सांस अंदर, आंखें बंद कर सकते हैं और सांस छोड़ते हुए एक और राउंड, गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ें। एंड रिलैक्स, हाथों को नीचे ले आए। अगर आंखें बंद हो तो आप आंखें खोल सकते हैं। सो दीप्ति, आरती बोल रही है कि उसको पहले करने से चक्कर आते थे लेकिन अभी करते करते ठीक हो गया है। हाँ, शी कैन कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज वो प्रैक्टिस के साथ अगर करें और अभी करते करते ठीक हो गया तो कोई हार्म नहीं है। और रिंकू भी लिख रही है कि वो ये ब्लड प्रेशर के लिए करती है। हाँ, ये हमने अभी डिस्कस करेंगे हमारे पीपीटी पे। आप देखो सेकंड पॉइंट है हाइपरटेंशन एंड एंजाइटी, जो हम उस पे कवर कर रहे हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनी काइंड ऑफ एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके। तो अभी हमने सबने एक्सपीरियंस कर लिया ये। क्विकली हम छोटा सा बेनिफिट्स इसका, जो स्पेसिफिक इस प्राणायाम का बेनिफिट्स है, वो देख लेते हैं। जैसे हमने ये बजिंग साउंड माइंड में, जो हमारी जो कंटिन्यूअस माइंड में अपने से सेल्फ टॉक चलती है, हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, कुछ सोचते भी हैं तो हमें लगता है हम अपने आप में है, साइलेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं। तो वो जो बजिंग माइंड है उसको ये एक तरह से रोक देता है। ये करने से एक बार हमें शांत फील होता है। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हाइपरटेंशन या एंजाइटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये सोने के टाइम पे भी कर सकते हैं, उठने के साथ साथ भी कर सकते हैं, लाई डाउन करके जब भी लेट रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से बैठ के करना है ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज ये ज्यादातर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये इस एरिया जो हेड रीजन है अबव नेक, इसी को अफेक्ट किया जब हमने वो आवाज निकाल के एक्सेल किया। और अगर ये एंजाइटी को हेल्प करता है, उसी तरह से ये गुस्सा, एंगर को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट दो ग्लैंड्स हैं, पीनियल और पिट्यूटरी, जो हमारे हेड रीजन में है इन द सेंटर, उनको भी ये स्टिम्युलेट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैंडल करते हैं। एंड फॉर प्रेग्नेंट विमेन ऑल्सो दिस इज वेरी गुड, बिकॉज ये एंजाइटी या कोई भी तरह का टेंशन रिमूव करता है। बेसिकली दिस गिव्स लॉट ऑफ कामनेस टू द माइंड। ओके। या तो अब हम वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट। या उर्मी बोल रही है कि जब whenever she is taking deep breath with stomach, मतलब पेट जब अपने बाहर निकालते हैं, तो she is having pain on the right side of the stomach. So, Urmi, this is not normal, but it might be if you have undergone any surgery, if any surgery or anything related in the abdomen region, because otherwise this is not usual. You should get this checked on the right side especially. So until and unless if you have had a surgery, if you could quickly put in your answer, anything related to the stomach, then this can happen. She says no surgery. Yeah. This can just be one-off case today, and if you want to observe it a little more, just do this same practice, abdominal breathing, for 7 days. It will not harm you. I am very sure it will help you. Still, if you feel the pain, then you should get this, you should consult a doctor. Payal I am reading Payal's message, which she's saying, I do closing, as per my knowledge, I do closing my eyes and keeping one finger on the forehead. That is another, totally another pranayam, Payal, which is a second level to Brahmari, which is called Shanmukhi Mudra. It gets a little critical, so I have just resorted to the simple version of that. Yeah. Yeah, so we are not, because I'll not be able to monitor whether everybody is keeping their fingers in the right place right now. And it involves, like, you know, keeping your fingers on one on the eye, one on the nasal, one on the lips, one on the chin, and the thumb on the earlobe, ear flaps. Rita ji पूछ रही, is it good for BP?
Yeah, we discussed right now. It's good for BP. I think we should take the quiz now. Yeah. Kavita. Bimla ji पूछ रही है how many times we can do this? This we can do from 3 to 6 times, but we can spread it in the day. 3 times a day we can do 3 rounds. We can do 5 rounds. This is good depending on the kind of problem. If someone has some problem, hypertension, anxiety, they can do it more frequently. Okay, so the poll is there. Yeah, I'll read out the question. Do you feel a little better than how you were feeling just 2 hours back? जैसे हमने ये सेशन शुरू किया उसके कुछ समय पहले तक आपको कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है, कुछ चेंज, ऑल्दो हमने बहुत छोटी प्रैक्टिस की है अभी, लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस लग रहे हो तो आप जरूर मेंशन कर सकते हैं. अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, या बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, या कोई भी फर्क नहीं अभी फील हो रहा है. चारों ऑप्शंस की पॉसिबिलिटीज हैं. Dipti Meenakshi is saying if you can show the other posture also, because some of them are doing that other posture. I don't have any problem in showing, but then people who are not aware should not practice it. हाँ वही. क्योंकि वो फिर अगर देख के करेंगे तो वो एक मुश्किल हो सकता है. हाँ. So what I will do is I will send a picture to these 2 people personally. Kavita, okay. If you can just make a note of these 2 people, I will send it to them. Sure. And you can close the poll. Yeah. So results are there in front of everyone now. 39 और 39% लोगों को अच्छा और बहुत अच्छा लगा. 7% लोगों को नहीं कोई फर्क लगा और 14% लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा. So it's nice to see the difference. ये 3 राउंड्स में ही अगर हम फील कर पा रहे हैं तो अब रेगुलर प्रैक्टिस से हम इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं. Absolutely. Yeah. So I'll go to the next slide. अब हम एक और बहुत पॉपुलर प्राणायाम जो सब लोग ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं वो सीखेंगे, और उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स इंपॉर्टेंट है जो क्विकली एक बार देख लेते हैं. किसी का अगर एक्यूट बैक पेन है, स्लिप डिस्क अगर उनको था या अभी है, कोई भी तरह का बैक की तकलीफ, तो वो ये अवॉइड करेंगे. डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर है, अगर बहुत टाइम पहले था तो 1 राउंड कर सकते हैं, बट धीरे धीरे करेंगे. और नेक्स्ट है ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, और अगर वो करते भी हैं तो वेरी जेंटली इट हैज टू बी डन. और 1 राउंड करेंगे हम मैक्सिमम, उसमें 10 से 15 बार करेंगे, लेकिन एक ही राउंड करेंगे. प्रैक्टिस में 3 राउंड अभी मैं करवाऊंगी, लेकिन आप 1 राउंड करके रुक जाइएगा, विश्राम कीजिएगा. अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उन्हें ये अपने आप से नहीं करना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन एंड विच मंथ दे आर इन, दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर. Also, like the case of any kind of abdominal surgeries, wounds, hernia, appendicitis, or expecting, or new mothers, if they have already delivered, they should not practice Kapalbhati for 6 to 10 months at least. In menstrual cycle, someone had asked me some time back. So if you are currently in your menstrual cycle, please don't do this. You learn it today and you practice after your cycle gets over. And any child who is above 5 years can start practicing this. Definitely not as much as an adult, just very simple, only 1 round. And when I say 1 round, that includes 10 to 15 strokes. We will learn that now. So once again, we will enter into a practical session of Kapalbhati Pranayam. I have listed the benefits, but we will discuss the benefits once we have learned the pranayam. So now I want to explain this. If you can look at this picture that I have bought, this picture basically is very good to explain what has to be done. Inhalation is slow and normal, and exhalation is quick and forceful. एक बार हिंदी में बताते हैं ये सेम चीज कि कपालभाति प्राणायाम कौन कौन नहीं कर सकते हैं. अगर बैक पेन है, या हाई बीपी है, प्रेग्नेंट हैं, या अभी डिलीवरी हुआ है, कोई भी तरह का सर्जरी अंडरगो किए हैं, या मंथली साइकिल्स में है, तो आप प्लीज अवॉइड करिए.
तो कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है ये एक बार हम पहले देख लेते हैं, फिर हम साथ में करेंगे। तो आप लोग एक बार देखेंगे और फिर हम साथ में करेंगे। इसमें जो मेन फोकस है वो हमारे एक्सलेशन पे होना चाहिए, मतलब ब्रीदिंग आउट। अगर हम सही तरीके से ब्रीदिंग आउट बाहर छोड़ेंगे सांस, तो नेक्स्ट सांस जो अंदर आएगी वो अपने आप हमारे डीप हम इनहेल कर पाएंगे। और जो एक्सलेशन है जैसे यहाँ लिखा है देखिए, क्विक एंड फोर्सफुल। तो जहां भी सांस हम जब छोड़ रहे हैं वो हम थोड़ा सा फास्ट छोड़ेंगे और थोड़ा सा फोर्सफुल छोड़ेंगे। इसलिए ये एंजाइटी, बीपी या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं करने को कहा गया है, क्योंकि ये फोर्स लगता है एब्डोमेन वाले एरिया में। और जो इनहेलेशन होगा, मतलब सांस अंदर लेना है, वो एकदम धीरे और एकदम नॉर्मल, जैसे सांस जैसे कुछ खाली हुआ है बलून, अब उसमें आप हवा भरेंगे तो अपने आप भर जाएगा, फूल जाएगा, उस तरह से इनहेलेशन है। तो ध्यान हमें सिर्फ एक्सहेलेशन पे देना है, इनहेलेशन जो है वो अपने आप होता चला जाएगा। मैं एक राउंड आपको एक बार वापस से बैठ के दिखाती हूँ करके, और स्क्रीन में इसमें फोल्ड करती हूँ क्योंकि आप स्टमक मूवमेंट देख पाओगे। कविता, आई होप द स्क्रीन इज अगेन नाउ ओके। Yes. या सो स्पाइन विल बी इरेक्ट। आप लोग सब पोस्चर ले लीजिए, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट पोस्चर से, नेक्स्ट राउंड से हम साथ में करेंगे। तो मैंने हाथ रखा है यहाँ, जिससे कि एक बार इजी हो समझने में कि पेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, फास्ट जो मैं बोल रही थी, फोर्सफुल। एक नॉर्मल सांस अंदर और मैंने छोड़ दिया बाहर। एक गहरा सांस अंदर और वापस छोड़ा। अब कपालभाति के लिए सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब हम साथ में करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी हम एक बार आईज ओपन रखते हुए और स्टमक पे हाथ रख के ही करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो एक बार कि पेट का मूवमेंट कैसा रहेगा। और फोर्सफुल एक्सहेलेशन जो मैं बोल रही हूँ, वो इतना ही फोर्स लगाना है जितना अभी आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा। इससे ज्यादा जरूरत नहीं कि आपकी गला छिल जाए या बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर करना है नेजल पैसेज के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो प्रेशर है वो सिर्फ स्टमक रीजन से है, यहाँ से है एक्सपेल करने के लिए, है एक्सेल करने के लिए। इज इट क्लियर टू यू कविता? हाँ दीप्ति। हाँ, ओके। सो आई एम प्रोसीडिंग विद दिस बिकॉज आई थिंक प्रैक्टिस करते करते सब साथ में करेंगे तो वो उनके लिए, सबके लिए क्लियर होगा। हाँ ठीक है। हाँ, सो स्पाइन इरेक्ट एक बार आप चेक कर लीजिए कि स्पाइन इरेक्ट है। जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। एक नॉर्मल सांस अंदर और बाहर। एक गहरा सांस अंदर और बाहर। अब कपालभाति के लिए हम फास्ट सांस लेंगे, जो सांस है, और एक्सेल करेंगे। सो इन आउट, इन out, in, 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 out, and relax. ये एक राउंड हमने किया। When I was mentioning अभी राउंड्स के बारे में, एक राउंड 10 से 15 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। So जिनको क्लियर है वो ठीक है, बट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो क्विकली चैट में आपका जो क्वेरी है वो डालिए, तो हम वो एड्रेस कर सकेंगे। अभी दीप्ति पिंकी लिख रही है कि उसको बोला गया था कि अगर बैक में पेन है तो वो लेट कर कपालभाति कर सकते हैं। आई विल स्टिल से कि ये अगर अंडर गाइडेंस है, कोई सर्टिफाइड टीचर के अंडर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द टीचर अंडरस्टैंड्स हर कंडीशन बेटर एंड शी कैन कंटिन्यू। बट इफ इट इज नॉट, इफ इट इज जस्ट सेड बाय, जैसे हमने कोई फ्रेंड बोला था या ऐसा कुछ भी था, तो हम बेटर है कि अवॉइड करेंगे। I think there are no questions. People having BP problem and taking medicines. We just discussed this, that if you are having BP problem, we will only do one round of 10 to 15 strokes. तो रितु जी, अगर अभी आप कर चुके हैं एक प्रैक्टिस राउंड, तो अभी आप राउंड्स और मत करिए।
और अगर अभी तक आपने सिर्फ देखा है तो आप एक राउंड कर सकते हैं. Menstrual cycle means, yes, of course, Shelja ji, your question says 7 days or whenever you think it has the cycle has completed. Jayashri ji is asking exhale from nose or mouth. It is always exhale from nose. If it is from mouth, I will make a special mention to it. Okay, let's go to practicing Kapalbhati for 2 more rounds. Let's sit again comfortably. दीप्ति, बाकी लोगों को भी 2 राउंड और करने हैं कि they will wait? They will do, but if they are suffering from any conditions, that is why I shifted the screen. Yeah, इसीलिए मैंने स्क्रीन शिफ्ट किया है कि इस एडवाइस वाली स्क्रीन पे अगर आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो फिर आप नहीं करोगे. एक राउंड आपने कर लिया है, फिर अभी आप और नहीं करोगे. ठीक है? तो अब हम एक साथ करते हैं और 10 स्ट्रोक्स ही करेंगे एक राउंड में. दीप्ति, थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट करो. ठीक है अभी? हाँ. ओके, ठीक है. तो एक हाथ राइट हैंड रख लेते हैं पेट पे. स्पाइन इरेक्ट है, पीछे पूरा इरेक्ट है स्पाइन. शोल्डर स्ट्रेट है. फेस पे एक स्माइल. एक नॉर्मल सांस अंदर और बाहर. एक डीप गहरा सांस एब्डोमिनल के लिए हम जैसा सीखे हैं, और फिर उसको भी छोड़ते हैं धीरे धीरे. नाउ फॉर कपालभाति. इन आउट, 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 इन आउट. And relax. मैंने लास्ट 5 ब्रेथ में काउंटिंग नहीं किया था, जस्ट टू शो कि कितना फोर्सफुल करना है. एक लास्ट प्रैक्टिस राउंड और करते हैं ताकि सबको ठीक से क्लियरली समझ में आए और वो एकदम सही से ये प्रैक्टिस करें. एक बार मैं इसका थियरी वापस बताना चाहती हूँ कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम धीरे से सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस होती है, और जब एक्सहेल करते हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, स्टमक थोड़ा स्क्वीज कर रहे हैं, जिससे जो भी लेफ्ट ओवर एयर है वो बाहर निकल जाए. इसका मेन क्रक्स, मेन फोकस बस इस पे है कि एक्सहेलेशन पे आप ध्यान दें. इनहेलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर एक्सहेलेशन इन दिस केस. So one last practice round for everybody. Let's do it together. Spine erect. Sit comfortably. Bring a smile on your face. A normal breath in and breathe out. A deep breath in and gradually exhale. For Kapalbhati, breathe in, out, in, out, in, out, in, 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 out, in, out, in, out, in, out, and relax. If you have closed your eyes, you can open your eyes now. And we will see some benefits specifically for Kapalbhati. Like Kapalbhati Pranayam, this is the skull shining. The translation of this is skull shining. Kapal is the forehead and Bhati means shining. So what will happen if the skull will shine? Whatever is there inside the skull, mainly the brain will shine. And if brain will shine, that means what? The intelligence, awareness, everything becomes heightened. And of course, it helps in all perspectives. So the benefits here, it is useful for detoxifying the body and clearing the energy channels. It helps in all kinds of detoxification. Just because you have seen, we are using the abdominal region, definitely it helps in appetite, also in improving digestion. And the least important, maybe I will say, but the nervous system is mostly catered by this because like we saw
that skull or the brain, it stimulates it a lot, and hence it balances the nervous system in the entire body. You can show the quiz, I think, Kavita. Okay. Next slide. Yeah. And while we are on the quiz, if anybody has some questions, I'm opening the chat box also. So once the quiz is displayed, you can take the poll. The poll is on, so we can start putting in our answers. इस पोल में 2 क्वेश्चंस हैं. एक है कि कपालभाति अभी आपने जो किया है, सीखा है, आपको लगता है कि आप पहले से ठीक कर रहे थे? 4 ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए. और अभी आपने जो 4 बार देखा, एक बार देखा और 3 बार किया, वो आपको करेक्ट प्रैक्टिस में आ गया है या अभी भी आपको उसमें शायद कोई डाउट है? So Ritu has put a question, what pranayam you suggest for gas and acidity? Even right now, the ones which we are learning, in that I will say Kapalbhati is very good because it aids in abdominal issues and it answers to all kind of abdominal issues. So if you practice this regularly, it will help you a lot. And like Brahmari, I had mentioned we can do thrice a day. Kapalbhati we should also restrict only to twice a day maximum with 2 rounds. Many people I have seen, they are doing hundreds and 200s of Kapalbhati, and also they believe that it will aid in fat loss, but I don't think it helps in any kind of fat loss. It just gives a better metabolism and a better digestion to the abdominal, through the abdominal region, and which aids in a better fit body. Kavita, you can stop the poll. Okay. So we have just received 54% of voting. Yeah, but we have kept the poll for almost 2 minutes. What to do? Okay. Let's wait for, yeah, okay then. So the results are for the first question that you feel you were doing it correctly before. Okay. And the second question is Kapalbhati, now you have learned. So 96% of the people say yes, which is a very good number. In the earlier result, a couple of people, 35% also say they were doing it wrongly. So again and again, I will focus. If you are doing it correctly, it is good. If you're not doing it at all, it is good. But if you're doing it with mistakes, it is not good. It is harmful. So kindly focus on learning it properly. If you think it is still not clear to you and you also not doing it earlier, don't do it. Don't practice it. Just do Brahmari, just do abdominal breathing. It will be of very, it will be of help, but don't practice it wrongly. Dipti, 2-3 questions है chat में आप. ठीक है, I will take it. Time to do not in morning. What is the best time to do if not in morning? For any kind of pranayam, 3 hours gap you keep from your food. So before your next meal, you do it. 3 hours of gap, I think, is good enough for pranayam or yoga practice. So Payal, I think I have answered your question. Does Kapalbhati helps in reducing tummy fat? No. No, but I can assure, yeah, I can assure that it will give you a better metabolism, which can aid in different kind of a weight loss or something, but directly it will not help. Only doing Kapalbhati will not help in tummy fat loss. One question here is a little specific about fibrosis of lungs. I don't think I will be answering it here. Urmi can ping me in personal. I am there on the group, on the yoga group of cafe, and Urmi, please ping me there. Kavita, should we proceed? Yes. Okay. So I believe the screen has shifted. Yeah. Okay. So here we see
I will just get into a little bit of theory, and I have kept this towards the end so that, we have learned a little bit of practical and then we see the theory to understand how pranayam is affecting us. The benefits that we have read up to now, but on what level? What is the logic in behind of pranayam? So here we see this 5 circles, 1, 2, 3, 4, and 5 circles, starting from the innermost circle. You don't have to remember the names. You don't have to remember these meanings, nothing. I'm just giving you a very brief idea that this is called Panch Kosha. And what is Kosha? Kosha is the sheets or the layers. So Panch is 5, like we understand in Hindi. So 5 layers of the body, which seemingly cover the self or the consciousness. Hence, this innermost is our physical body, how we are in the physical body. The second layer is the Pranmaya Kosha. The first name is Annamaya Kosha. The second one is Pranmaya Kosha. So this is the second layer where if we practice pranayam regularly, it helps in, it helps our body to bring the difference through pranayama. This is the Pranmaya Kosha, where the vital life force energy comes into the picture, and all breathing practices that we do affects this second layer of our body. And then gradually there are 3 more layers called the Manomaya Kosha, which is the mind. On top of that is the Vijnanmaya Kosha, which is the intellect. And the last is the Anandmaya Kosha, which is bliss, total bliss, harmony. But we are not going into the details of these layers. I want you to just know that Pranmaya Kosha is the second layer, and it is on just above the physical body in our body. And whenever we do pranayam, it purifies the vital life force energy, purifies this level, and hence we feel fresh, hence we feel the aura is clean, hence we feel more energetic, hence we feel more aware, more alert in the mind. I hope this is not getting too much to absorb. Okay. So one small thing about, what are the roots of this pranayam that we are discussing today on this platform. We are learning pranayam, we are getting to know about it. It comes from Ashtanga Yoga. There are many kinds of yoga, and this particular discussion that we have had is coming through Ashtanga Yoga. And this is from Sage Patanjali, who is actually called of lot of aphorisms of yoga. He has given around 196 aphorisms, and it has been followed, it is being followed from time immemorial. And we will see how pranayam plays a picture in this. So these are the 8 limbs of yoga. Why I use the term limbs of yoga is because this is not steps of yoga. We don't have to go one by one. It is like limbs of yoga. Do you see a chair over here which is not like a normal chair? It has 8 limbs instead of 4 limbs. So why I've used this picture? Because picture definitely always stays longer in our mind than words or anything that we listen to. Hence, this 8 limbs is symbolic of these 8 things that Patanjali had mentioned. The first is Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. So now if you see the 4th one, the 4th circle is Pranayama. And this is what we are doing. So like when we pull the chair, when we pull one limb of the chair, the entire chair comes, right, Kavita? So in similar way, when we are practicing one part also, we are getting closer to ourselves. All 8 pieces come along with it. Hence, it is not like a step-by-step process कि पहले आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, उसके बाद ध्यान लगेगा तो समाधि मिलेगी. ऐसा नहीं है. ये छोटे छोटे रूप में हम 8 चीज अगर एक करते हैं तो भी हमारे पास कुछ हद तक उस प्रोपोर्शन में आ रहा है, या हम उस चीज से उतना पास पहुंच रहे हैं. तो जैसे एक बार हिंदी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको कि चेयर का जैसे पैर होता है, तो हम जब एक पैर को टानते हैं तो पूरी चेयर हमारे पास आ जाती है. ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हमें मतलब चारों पैर को टानना पड़ता है तो चेयर आता है. इसलिए इसी तरह से यहाँ पे ये जो 8 बताए गए हैं, लिम्स बोला है हमने इनको, चेयर के पैर, कि ये 8 जो है, ये एक प्राणायाम भी हम कर रहे हैं तो हम इससे क्लोज जा रहे हैं, ये हम इससे यहाँ तक पहुंच रहे हैं. एंड जैसे एक ह्यूमन बीइंग, हमारा जो जीवन का उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं हाइटेंड अवेयरनेस,
जिसकी एक एनर्जी लेवल पे जब हम बोलते हैं समाधि या ध्यान, सब एक मनुष्य जीवन का जो एम है या गोल है वो उसके पास पहुंचना है। तो प्राणायाम 8 में से एक पैर है एक चेयर का, जो हमें पूरा का पूरा चेयर के पास एक प्राणायाम करने से भी वी रीच क्लोजर टू द एंटायर सेल्फ। हेंस अब हमने प्राणायाम का सेशन किया तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये 8 लिम्स ऑफ योगा का एक लिम है प्राणायाम, and it is not 8 steps or 8 layers or 8 levels of yoga. Correct. Yeah. So we'll move to our slide. In this, I have put this with an objective कि आजकल लोगों को बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज, इवन क्वेश्चन में आ रहा था कि गैस रिलेटेड इश्यूज है, गैस एसिडिटी और गैस से रिलेटेड इश्यूज है। तो हम अगर ये 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हम बोलते हैं इसको, एयर, स्पेस, फायर, अर्थ एंड वाटर, और 3 दोष आयुर्वेद के हिसाब से होता है, वात, पित्त और कफ। अगर हम इसके बारे में नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ने अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कुछ भी अपना नाड़ी परीक्षा करवाया एंड दे अंडरस्टैंड कि वात है, उनको ये पता है कि उन्हें वात की तकलीफ है, तो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं और दिस इज रियली वेरी मच ट्राइड एंड टेस्टेड कि प्राणायाम के थ्रू वो वात का जो इश्यू है, खाने पीने का ध्यान तो उन्हें रखना ही पड़ेगा, लेकिन प्राणायाम के थ्रू वात का जो इश्यू है वो बहुत जल्दी से, आसानी से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मेरा इसको, इस स्लाइड को मैंने यहाँ रखा है। इफ यू नो दैट यू सफर फ्रॉम वात दोषा or imbalance of Vata is air and space, then please practice pranayam for some time in the morning and some time in the evening. It will help you to balance the body. And like we learned, pranayam, it's only modulation of inhale and exhale. Kabhi fast, kabhi slow, बस ये करके हमें प्राणायाम करना है। So Kavita, let's put the last the quiz that we have after this. Okay. The quiz is there, आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्विज है। So the question is, did you enjoy the little theory about pranayama and its roots? ये जो थ्योरी अभी हमने डिस्कस किया, क्या ये आपको सुन के अच्छा लगा या आपको लगा कि नहीं ये मजेदार नहीं था, ये बोरिंग था या जानने की जरूरत नहीं थी? So we've received 70% of votes. Yeah, I think you can close the vote. Yeah. Very nice to see that the results are 100% from the people who voted. I don't see any fresh questions also here, so I proceed. Yeah, so now we will learn another practical pranayam. So Jayashree, someone is right. Jayashree Anulom Vilom. Please go ahead, Kavita. Yeah. So Jayashree just wrote in the chat that she wants to learn Anulom Vilom. Anulom Vilom, yeah. And the next slide just came up. Right. So we will now learn Anulom Vilom. So like the other pranayams, we will discuss the benefits later. First, we will learn it. This is also called Nadi Shodhan Pranayam or Anulom Vilom. It is more popularly called Anulom Vilom. And if we see what is Anulom Vilom, it's alternate nostril breathing. ये समझना जरूरी है इसमें। वापस मैं यही बोलूंगी कि हम अगर सही तरीके से करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, और अगर हम नहीं करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो हमें बेनिफिट की जगह नुकसान मिलेगा। इसलिए थोड़ा फोकस करके ये सुनिए। अगर आप सही कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करिए। जो लोग के लिए नया है वो थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी मतलब जो चैनल्स, एनर्जी के फ्लो की चैनल्स हैं हमारे शरीर में, वो बहुत सारी नाड़ियां हैं, हमने सुना है, कोई बोलते हैं 72,000 नाड़ियां हैं ऐसे करके, तो वो नाड़ी ये है।
शोधन मीन्स प्योरिफिकेशन या क्लीनिंग या उसकी सफाई। प्राणायाम तो मतलब श्वासों के थ्रू जब हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हमारी इन नाड़ियों की सफाई होती है। अगर ये सफाई होती है तो रुकावट नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, तो हमें बहुत क्लियरली ब्रीथ हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, स्मूथ, और वो जो हमने पढ़ा था डीप और शैलो ब्रीदिंग उसी तरह से। तो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लोग एक बार में नोज के जो नॉस्ट्रल है उसके एक तरफ से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से सांस अंदर लेते हैं, पहले से छोड़ते हैं। अभी तक हम लोग हर इसमें प्राणायाम में दोनों नॉस्ट्रल को इक्वली यूज कर रहे थे, बट इसका नाम ही है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसका जो साइंस है इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ कि क्या क्यों ऑल्टरनेट करते हैं, कौन सी नाड़ियां अफेक्ट होती है, अभी हम सिर्फ इसको सीखने पे फोकस करते हैं। तो जब हम इसका पोजीशन में आपको पहले समझाती हूँ। पोजीशन के लिए हम तो इसमें हम ना थंब का एक सेट रहेगा, थंब को हम जेंटली राइट नॉस्ट्रल पे रखेंगे और ये दो फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, हम दोनों आईब्रो के बीच में, दोनों बोहों के बीच में ऐसे जेंटली रखेंगे, एकदम हल्के से ऐसे टच कर रहे हैं, प्रेस नहीं कर रहे हैं हम कुछ भी, एकदम हल्के से रखा है हमने। और लास्ट टू फिंगर्स, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल के फ्लैप पे रख रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल के ऊपर। मैं सिर्फ पोजीशन आपको एक बार साइड वेज भी दिखा रही हूँ। तो इस तरफ से ये पोजीशन है, ये जो थंब है ये नॉस्ट्रल राइट नॉस्ट्रल पे है, नेक्स्ट दो जो फिंगर्स हैं वो आईब्रो के बीच में, और लास्ट टू फिंगर्स मिडिल और स्मॉल वो लेफ्ट नॉस्ट्रल के ऊपर है। दिस इज द पोजीशन। इस पोजीशन में हम करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कोनी है एल्बो, दिस इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। आई विल शो यू द रॉन्ग पोस्चर ऑल्सो। सो बहुत लोग करते करते या शुरू में ही इस तरह से कोनी उठा लेते हैं, लेकिन ये कोनी अगर हम उठा लेंगे तो हमें शोल्डर्स पे पेन आने लगेगा धीरे धीरे। सो द बेस्ट पोस्चर इज दिस, where the elbow is pointing downwards towards the floor or towards your knees. I hope the position is clear because it's very important to have the correct posture in doing this. And now I will show you. Please don't practice it with me right now. Even if you know it, just see one demo round and then we will all do it together. So, एक normal सांस लेते हैं और उसको छोड़ देंगे। मैंने पोजीशन वैसे का वैसा रखा है जैसे आपको एक्सप्लेन किया था। थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रल, मिडिल टू फिंगर्स इन द मिडिल ऑफ द आईब्रो एंड द लास्ट टू फिंगर्स ऑन लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो नॉर्मल सांस लिया और छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस मुझे अंदर लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेना है और सांस लेके लेफ्ट नॉस्ट्रल को हल्का सा क्लोज कर ले रहे हैं। ये जो दो फिंगर्स थी इसी से हम हल्का प्रेस कर रहे हैं। And I'm releasing the thumb to exhale from the right nostril. फिर right nostril से ही सांस अंदर लेंगे, सांस अंदर लेके उसको बंद कर लेंगे और लेफ्ट nostril का फ्लैप खोल देंगे, वहां से exhale करेंगे। लेफ्ट nostril से वापस breathing in, right nostril का फ्लैप खोला, थंब को हटाया, right nostril से एक्सेल। ये है सिंपल वैसे कि आप जहां से एक्सेल कर रहे हैं वहीं से इनहेल कर रहे हैं। जब इनहेल कर रहे हैं तो ऑपोजिट नॉस्ट्रल क्लोज्ड है। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल एंड रिलैक्स। सो नाउ वी शुड प्रैक्टिस इट टुगेदर। एंड इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट से ही एंड करते हैं, और इन बिटवीन 5 राउंड्स करते हैं प्रैक्टिस राउंड के लिए। एक साथ 5 बार करेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो फ्लैप खुला हुआ है, जब एक्सहेल कर रहे हैं तो वो फ्लैप बंद है। और बहुत जेंटली, ये जैसे फ्लैप थंब है, ये नॉस्ट्रल को एकदम ऐसे प्रेस नहीं करना है, इसको टच करना है जेंटली, ताकि यहाँ से अपने आप जो हवा है वो निकले नहीं, हल्का जेंटल टच। और दूसरे साइड से वैसे ऑपोजिट मूवमेंट्स करना है ऑफ टचिंग एंड रिलीजिंग। Is it clear, or anybody has any particular doubt, has not got the posture? So there is a question that whether we should do it forcefully or
Gently, the breathing. See, Kavita, Jayashree is asking, is it gentle or forceful? So I think, I hope she's talking about the breathing, because it will be gentle. Yeah, breathing. Forceful is only in terms of Kapalbhati that we have learned today. And apart from that, it is all gentle. And the key in Nari Shodhan, in Anulom Vilom is, जितना हम धीरे करेंगे और जितना लंबा सांस लेंगे, उतना ही ये इफेक्टिव होगा. राउंड्स जितने लंबे होंगे, हम जितना स्लो कर पाएंगे उतना अच्छा है. और जितना इनहेल करने में हम अगर 2 सेकंड लगा रहे हैं, तो एक्सेल करने में भी हम इक्वल टाइम लगाएंगे. ऐसा नहीं है कि हम फटाफट इनहेल करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, या ऑपोजिट. हम धीरे धीरे ही इनहेल करेंगे, धीरे धीरे ही एक्सेल करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार. तो अब हम लोग एक बार वापस एक प्रैक्टिस राउंड करते हैं. लेफ्ट हैंड पोस्चर प्लीज. अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो ही आप लेफ्ट हैंड यूज करोगे, अदरवाइज इट इज सजेस्टेड टू प्लीज डू इट इन द राइट हैंड. इट हैज बेनिफिट्स फॉर फ्रॉम डूइंग इट इन द राइट हैंड. इवन लेफ्ट हैंडेड पीपल इफ पॉसिबल डू इट विद द राइट हैंड. और अगर एकदम इमरजेंसी आपको लेफ्ट हैंड से ही करना है, आई एम शोइंग यू द पोस्चर वंस. Again, I will advise that it's good to be done from the right hand. So now I'm taking my left hand. The thumb will come on the opposite side, on the left nostril, the middle 2 fingers in the middle of the eyebrow, and the ring finger and the small finger on the right nostril. आपका जो भी hand है, उस hand का thumb left nostril, यहाँ left hand का left nostril पे. जब हम right hand use करते हैं, तो right thumb right nostril पे. तो जो हैंड है वही वाले नॉस्ट्रिल पे थम आएगा. तो आप एक चीज याद रखिए, तो फिर बाकी आपको याद रहेगा. अगर यहाँ थम आया, फिर 2 फिंगर्स मिडिल में, फिर लास्ट के 2 फिंगर्स नीचे. ओके, सो वील प्रोसीड अहेड नाउ. Yes. इसमें एब्डोमेन की जरूरत नहीं है, मैं फेस के क्लोज लाती हूँ इसको, ताकि जितना भी हो एक बार आप लोग सब आईज ओपन करके करिए. सब लोग स्पाइन इरेक्ट कर लें, पोस्चर ले लें. अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पे और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, मिडिल 2 फिंगर्स आईब्रोज के बीच में. एक नॉर्मल सांस अंदर और बाहर. एक गहरी सांस अंदर और बाहर. अब राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे थंब से. लेफ्ट से इनहेल, धीरे धीरे इनहेल. लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से एक्सहेल. राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल. Inhale from the left. Close your nostrils with the ring finger. Exhale from the right. Inhale from the right. Close the right nostril with the thumb. Exhale with the left. Inhale with the breath through the left nostril. Long, deep breaths. Exhale from the right. धीमी और लंबी सांसें. Inhale from the right. Close your thumb. Exhale from the left. And again inhale from the left. And exhaling from the right. Inhaling deep, long breaths from the right. And exhaling from the left. And relax.
You can open your eyes if you had closed it. And you can put your questions in the chat. So Kavita, should we put up the quiz? Yeah, I'll just. So how is the state of mind, everybody? Is there a difference? Do you feel good? I see people are writing in the chat. Pinky ji writing relaxed. Someone is asking which pranayam works for migraine. Yeah. Bhramari works for migraine because migraine is in the head region and Bhramari works totally in the head region. So any kind of headaches, everything, anxiety, which is mind related, head related, it will be Bhramari. Why I'm saying this is that if you have any other problem also, which is of the head, you can on your own sit and do 5 to 7 rounds of Bhramari. It will definitely ease out. If not completely give you a solution, but it will ease out. Someone is asking how much time we hold the breath. I have not taught holding the breath. Vimla ji is asking. So we are not holding the breath. Kavita, I think you can, you want to continue with the poll? I just ended it. Yeah. So very nice to see the results that everybody has felt a little calmer, and the percentage also is very good. 40 to 80% is the maximum category. This is amazing. This is very nice to see people have felt calm, and in the chat also I can see feeling relaxed, feeling good, very relaxing. Thank you, calmer. So this is a session, the last slide of my presentation, but I think we have discussed it already in most of the individual pranayamas. Still, you can keep going through it. It calms the mind. It brings us in the present moment. It is increasing the self-awareness. It reduces any kind of anxiety. It improves our focus and attention. It brings enthusiasm and positivity. It boosts our immune system. And a lot of other benefits to pranayam. We can, I think now everybody will agree to the benefits because we have tasted it to a certain extent. Yeah. This brings us to the completion of presentation. I think we can take some questions if there are any. Yeah, so Rekha is asking how many times to do this Anulom Vilom? This can be done like if you're asking how many times in a day, if you want to do, you can do it 9 rounds in one time. If you have time, you can do it twice a day. You can do it thrice a day. And if you are empty stomach, it will help you to go deeper. It will help you to take deep breaths. And the main thing in this is long and deep breaths. And inhalation and exhalation should be equal. So don't rush. Any other questions are there? No, not on the chat. Yeah, so if anyone wants to ask something, like they have to raise their hand, or because we can open it if someone wants to ask something, Yeah, or just they can raise their hand or they can just put it in chat that to unmute them. So I will do that. right. So अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो. और अनुलोम विलोम के लिए मैंने अभी जो बोला, मैं एक बार हिंदी में वापस बोलती हूँ कि अनुलोम विलोम आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हो. एक बार में 9 राउंड्स हम करेंगे, और जब भी करें तो पेट खाली रहे, थोड़ा 3 आवर्स का गैप रहे फूड से, और धीरे मतलब
लंबी और गहरी सांसें होनी चाहिए, और हम जितना स्पीड में इनहेल कर रहे हैं, जितने स्पीड में हम सांस अंदर ले रहे हैं, उतने ही स्पीड में हम सांस बाहर छोड़ेंगे। ये जो स्पीड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत धीमी गति से करें और दोनों को बराबर रखें। अगर आप जल्दीबाजी में हो तो जल्दी जल्दी कर लें अनुलोम विलोम, तो आप अनुलोम विलोम स्किप कर दो, वो मत करो उस टाइम, कभी और बाद में कर लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से बैठ के ही अनुलोम विलोम करो। एंड क्वेश्चन ये था कि ये सारे प्राणायाम क्या एक साथ करने चाहिए कि आपको गैप रख के करना चाहिए, या कौन सा पहले करना चाहिए? नहीं, सीक्वेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इट इज ये है कि एक साथ करें, अगर टाइम अलाउ करता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो सीक्वेंस मैंने रखा, जैसे कपालभाति थोड़ा एफर्ट वाला प्राणायाम है, तो उसके बाद हमने ये अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शोधन, जो हमें और भी काम डाउन कर देता है। और भ्रामरी से जैसे ब्रीदिंग तो हम करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जब भी प्राणायाम शुरू करेंगे, तो चाहे 3 करे चाहे 5 करे। उसके बाद भ्रामरी कर सकते हैं जो हेड रिलेटेड हो गया, फिर एब्डोमेन रिलेटेड कपालभाति हो गया, और नाड़ी शोधन पैर से लेके सिर तक हमारी नाड़ियां चलती है, तो वो पूरे बॉडी के लिए हो गया। ये सीक्वेंस में करेंगे तो बहुत अच्छा सीक्वेंस है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यू एब्डोमिनल ब्रीदिंग्स, योगिक ब्रीदिंग्स, देन भ्रामरी, देन कपालभाति, देन नाड़ी शोधन। और अगर हम ब्रेक्स में भी करते हैं तो हमें सिर्फ कपालभाति का ही ध्यान देना है, बाकी प्राणायाम हम दिन में 2 से 3 बार जब भी मतलब ज्यादातर कर सकते हैं। कपालभाति स्ट्रिक्टली विद अ गैप ऑफ फूड, हम 2 बार, हाँ 2 बार, और फूड के गैप को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि 2 घंटा मिनिमम होना चाहिए, पेट हल्का फील होना चाहिए। कभी बहुत भारी खा लिए तो 2 घंटे में भी नहीं कर सकते हैं। बबीता को क्वेश्चन पूछना है। बबीता दी, आप पूछ सकते हो। जैसे अनुलोम विलोम करते समय सांस में आवाज नहीं होनी चाहिए ना? आवाज, साउंड नहीं होना चाहिए ना सांस? हाँ देखिए, साउंड तभी होगा ना जब आप जोर लगाएंगे, और इसमें ना अपने को जोर नहीं लगाना है। जैसे एकदम धीरे, सपोज करिए आप सोचिए कि आपने ना दूसरे हाथ से फ्लावर को पकड़ा है, ठीक है, आप फ्लावर सूंघ रहे हैं और एक हाथ से आपका अनुलोम विलोम चल रहा है, तो कैसे हम एकदम धीरे से मजा लेते हुए धीरे धीरे से स्मेल लेते हैं ना, वैसा एकदम धीरे लंबा गहरा सांस होना चाहिए, तो आवाज नहीं आएगा। कपालभाति में जरूर आप जब बाहर सांस छोड़ोगे एक्सहेलेशन में, तब आवाज आएगा, क्योंकि हम फोर्सफुल ब्रीदिंग जान के कर रहे हैं, विद अवेयरनेस, कॉन्शियसली कर रहे हैं। एक योगा क्लास हम ज्वाइन किए थे, उसमें सर बताए थे कि सांस लेते समय आवाज नहीं करनी चाहिए। आवाज नहीं करना, अनुलोम विलोम करते समय नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। हाँ, दीप्ति, निशा बोल रही है कि अगर करते टाइम अपने को थ्रोट में ड्राइनेस लगे तो क्या करना चाहिए? ये कौन से प्राणायाम के लिए? बिकॉज ये मतलब भ्रामरी और ये सब में तो ये नहीं है, मेरे को लगता है। आई थिंक ओनली इन कपालभाति दिस कैन हैपन, बिकॉज वहां फोर्सफुल ब्रीदिंग है। तो फॉर अ कपल ऑफ times or couple of days we have, yeah, she's writing kapalbhati, then we have to stop doing kapalbhati for some time until the throat cures, because definitely there is an internal issue with the throat. कुछ soreness है या वहाँ कुछ inflammation है, swelling है, कुछ भी है, वो थोड़ा ठीक हो जाए 3 दिन 4 दिन बाद ही हम फिर कपालभाति करेंगे। अगर कोई भी acute condition है, acute मतलब immediate हुआ हुआ, तो हम उस condition में वो चीज नहीं करेंगे। जैसे बैक के लिए हमने डिस्कस किया कि अगर अभी आपके कमर में दर्द आया हुआ है, तब आप अब कपालभाति नहीं करेंगे। लेकिन अगर 6 महीना पहले दर्द था, अभी वो नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आया हुआ है तो वो नहीं करना है। दैट इज व्हाट इज एक्यूट, कि अभी करंटली वो एकदम हाई पे है, तो वो चीज को हम रेस्ट देंगे, उस चीज को यूज नहीं करेंगे। सेम विद द थ्रोट। Dipti, I guess now we can close the session. Sure, because I also don't see more questions coming in. And no one else has raised their hands also, so no. ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? चनक हटाने के लिए, चनक हटाने के लिए ऐसे स्पेसिफिक कोई प्राणायाम तो नहीं है चनक हटाने के लिए। लेकिन अगर अभी करंटली चनक आया हुआ है तो आपको ऐसे भी कुछ नहीं करना है, मतलब ये करके ठीक नहीं करना है।
So Dipti, thank you so much. बहुत ही अच्छा सेशन था, मुझे पर्सनली बहुत मजा आया करके, और मैं कोशिश करूंगी कि रोज फॉलो करूं इसको, और सबको बोलूंगी करने के लिए, बिकॉज बहुत अच्छे इसके परिणाम दिखते हैं अपने, और इसके काफी फायदे भी हैं, और बहुत ही सिंपल है, आप कभी भी कर सकते हो दिन में। जस्ट खाने से थोड़ा आपको दूरी रखना है इसमें जब आप करेंगे तो, और रिजल्ट्स आप जिस तरह से जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, इसमें एकदम ये प्रोपोर्शनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड है कि हम लोग जितना इसके अंदर मतलब जितने डीप सांसें लेंगे, जितनी गहरी सांसें लेंगे, उतना हमें रिजल्ट जल्दी दिखने भी लगेगा विद इन आवर ब्रेथ। जैसे जो शॉर्ट ब्रेथ होता है या ब्रेथलेसनेस होता है, उसमें भी प्राणायाम का असर दिखाई देने लगता है 7 दिन के अंदर ही। और कोई भी अगर और फर्दर इसको जानने के लिए, मतलब जैसे क्योंकि मैंने जो ये सीखा वो एक योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में सीखा, लेकिन उसके भी पहले हैप्पीनेस प्रोग्राम जो आर्ट ऑफ लिविंग करवाते हैं, उसमें ये प्राणायाम मेन ब्रीदिंग एक्टिविटी ही है जो सुदर्शन क्रिया है, और जो आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है। प्लस श्री श्री योगा बोल के भी एक अलग से कोर्स है, किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो वो ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन अभी काफी बिकॉज ऑफ कोरोना हो रहा है कि हर चीज ऑनलाइन आ गया है, तो यहाँ पे ये दोनों प्रोग्राम्स है जिसमें प्राणायाम या योगा, किसी को और डिटेल्स में भी सीखना हो तो यहाँ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच दीप्ति। श्योर। Thank you everyone for joining. Very nice, Kavita, because I really admire the great job that you're doing of bringing so many women together, and I'm really very thankful for you for this opportunity, because anyways I associate so much with other circles, and this being in Calcutta, I am even more happy to do this for you. Yes, absolutely. Thank you, Dipti. And whenever, when we can meet physically, I will ask you and request you to take one more session physically. जब खुल जाएंगे और अपने right. I think that definitely that जब खुल जाएगा, right. We can do that because उसमें हम थोड़ा और deep में जा सकते हैं, because we can see what people are doing. कुछ तो वो definitely we can do a little elaborate session. Absolutely. हाँ. Thank you so much everyone. Bye bye. Okay. Thank you so much.